Yes, dear students, we are doing chapter number 3, Meeting Life Challenges. It's written Meeting Life Challenges. Chapter 3, NCRT book. We are doing class 12. Okay. Um, we are at page number 56 according to NCRT class 12 book, and the topic is sources of stress. Okay, what kind of sources? What are these various sources which gives us stress? So let's go one by one. The very first which is written here is life events. There are certain life events which gives us stress. What could be? It's something like moving to a new house. Oh my god, everything has to be packed and then unpacked. Oh, this is a very stressful event. Even the new place, new people around, new situation, how will I be able to कोप अप? बिकॉज हमारे घर में तो हमारी पूरी सेटिंग होती है, वी नो यहाँ से इस तरफ इधर जाना है, वो भी एक नई चीज़ करना. सो ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स इट गिव्स अस स्ट्रेस. So these are certain changes. Now these changes could be big or small. It depends again what kind of personality we are. अगर तो हम में कोपिंग करने की ताकत बहुत ज़्यादा है तो हम बड़े बड़े चेंजेस को भी बड़े आराम से कर लेते हैं. लेकिन येस, हाँ, कुछ देर के लिए स्ट्रेस आता है. अब whether it is suddenly happened or it is happening gradually, if we are making up our mind from last 1.5 years that we are going to shift to a new house, may not give you that much stress. But yes, if you get to know immediately that after a month we have to shift to somewhere, so I think it may give. So it depends upon the challenge, how big or the change, how big or small the change is, how sudden it has happened. Okay, so this will depend upon that. So major life events कौन से हो गए वो, they can be stressful because they disturb our routine. That's the reason, that is why we give stress, because मेरी routine disturb हो जाएगी. हम नहीं चाहते, हम अपने ना उसी comfort में रहना चाहते. So they are, if we are able to plan, then it is not going to be a problem. It's something like suddenly you have to visit to a place. आपको कहीं फॉरेन टूर पे जाना पड़ रहा है या कहीं दूसरी जगह, तो यू विल बी स्ट्रेसफुल. इफ यू हैव प्लान बिफोर हैंड, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी, यू मे एंजॉय दिस. देन कम सेकेंड इज हैसल्स. हैसल्स क्या है? These are actually the personal stresses. These are personal stresses we endure as individuals due to happenings of our daily life. All right. Hassles actually is related to happenings in our daily lives, such as noisy surroundings, commuting, एक जगह से ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है. जैसे आप बच्चों के लिए you have to go to school. अभी तो it is not started, but you once it will start. School जाना है, school से first tuition, second tuition, commuting. This will give you, these hassles are actually stressful. Quarrelsome neighbors. Oh, every time when you come out from your door, they start speaking or they start shouting. Oh my god. So such kind of noisy surroundings, maybe water shortage sometimes is hassle. Traffic, you know, every time stucking up in the traffic is hassle. So daily hassles of housewife and working females, they have to finish the household chores and then they have to pack their bags and then they have to rush to office से वापस hassles हैं. So these small or big hassles, अब वो कितनी frequency में हैं, कितने सालों से हम कर रहे हैं, फिर हम used to भी हो जाते हैं. But most of the time these hassles gives stress. They are the sources of stress. Traumatic events भी हैं. Traumatic events में variety of events आ सकते हैं, जैसे कि fire, train, road accidents, robbery, earthquake, and they persist as symptoms of anxiety. Flashbacks, dreams आएंगे, है ना, intrusive thoughts आएंगे, बुरे बुरे ख्यालों का आना. So ये सारे events जो हैं, ये severe trauma can also strain relationships. जो लोग ट्रॉमेटिक इवेंट में रहते हैं वो फिर नॉर्मल तो हुए ही नहीं, उनसे फिर क्या होगा, उनके रिलेशनशिप्स, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी स्टेक पर आ जाते हैं. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. यू मस्ट पेन डाउन दीज सोर्सेज. ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर. ये देखिए यहाँ पर अब हमने करना है, यहाँ पर ये जो टेबल बनाया गया है ये पिछली वाली सारी बातों को लेकर. स्ट्रेसर्स क्या क्या हैं बेटा, क्या क्या है स्ट्रेसर्स? टाइप्स हैं, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल.
और डायमेंशंस कैसी हो सकती हैं स्ट्रेसेस की, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. इफ इंटेंसिटी इज लो देन ना शायद इफेक्ट करे, बट इफ इट इज हाई इट मे इफेक्ट. ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म के लिए आया है प्रॉब्लम या लॉन्ग टर्म इवेंट है. कॉम्प्लेक्स कितना है, लेस कॉम्प्लेक्स की मोर, ये हम सब कर चुके हैं. प्रिडिक्टेबल है या सडन इट हैज हैपेंड. देन कम्स रिसोर्सेज कौन से हैं, वी हैव डन दिस. फिजिकल रिसोर्स क्या है, मनी, मेडिकल केयर, ये सब. पर्सनल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल है या नहीं. सोशल सपोर्ट है कि नहीं, घर में पेरेंट्स सपोर्टिव हैं. प्रोफेशनल लाइफ में बॉस जो है या कोलिग्स आर सपोर्टिव, सो वी मे बी एबल टू ओवरकम. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कौन कौन से हो गए, इट इज़ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल. ठीक, इनसे भी डिपेंड करता है. ये आपका जो चार्ट है ये आपकी बुक में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, it is given in NCERT book on page number 53. Okay, not in the same way but yes it is almost the same. So stress appraisals कौन से हो गए बेटा, physiological, ठीक है, behavioral, emotional and cognitive response. So ये हमारा एक चार्ट्स बना हुआ है ताकि हमें आइडिया हो जाए. अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो कि NCERT बुक में पेज नंबर 57 पर दिया है. This is very beautifully explained here. All right. What is the effect of stress on psychological functioning and health? अब इफेक्ट क्या होगा इस सारी चीज़ों का, तो इनके इफेक्ट हमारे देखिए कहाँ कहाँ होंगे. हमारे इमोशनल डिसबैलेंस होगा, दिस इज इमोशनल इफेक्ट हो गया. देन कम्स दी physiological, I'm sorry, that is bodily effect, physiological. Then comes the cognitive effect, इसे हम कहते हैं माइंड में भी इफेक्ट होगा, and behavioral effects. These are 4 types of effects. आपकी बुक में इनके नाम दिए हैं. इसे दिया है इमोशनल, this is emotional, this is physiological, this is cognitive, mind वाला, and this is behavior. You must draw this on in your notes so that you can learn it better. All right. So एक बार इनको रीड कर लेते हैं. ओके, पहले देखते हैं बॉडीली चेंजेस क्या आते हैं. हेडेक्स हो जाएंगे, ब्रेन माइग्रेन हो जाता है कुछ लोगों, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस. देन यू हैव टाइट मसल्स. ओके, सो मसल्स क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बॉडी पेन, फटीग, मैस्कुलर ट्विचेस हो जाएंगे, स्किन इरिटेशन, ब्रेथलेसनेस. फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू हैपन. माइंड के पहले आते हैं इमोशनल चेंजेस क्या आएंगे, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, फसीनेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन. देन एलिनेशन, एप्रीहेंशंस, हर चीज़ में एप्रीहेंशन. बिहेवियर में क्या होगा, बिहेवियर में एक्सीडेंट प्रोन हो जाएंगे क्योंकि सोचते सोचते गाड़ी चलाएंगे तो टक्कर ही होगी. लॉस ऑफ एपेटाइट, फूड कम खाना. लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव. ड्रिंकिंग मोर, ड्रिंकिंग यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है जी, अल्कोहल ड्रिंकिंग, अल्कोहल अब्यूज हो जाएगा. इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी. देन रेस्टलेसनेस, स्मोकिंग मोर. सो ये दीज थिंग्स विल हैपन. व्हाट विल हैपन इन द ब्रेन, ऑलवेज वरीसम, मडल्ड थिंकिंग, ये कर लें या ये कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें. इम्पेयर्ड जजमेंट, मतलब पता ही नहीं चल रहा. nightmares, indecisions, negativity, hasty decisions, these all are the changes which will occur in the mind. All right, so iske let me just give me a second. Let's come one by one. Emotional effect पे आप सबसे पहले आ जाइए. According to your book also this is listed at the first place. Those suffering from stress experience mood swings. इनमें बड़ी जल्दी कभी खुश हो जाएंगे और कभी क्या लगेगा, दे आर वेरी सैड. शो डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, क्या होगा, इरेटिक बिहेवियर होगा एकदम से. इसको मूड स्विंग्स में हम इरेटिक बिहेवियर कह देते हैं समटाइम्स. डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस. सफर फ्रॉम फीलिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीज्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन. होगा क्या, दे में एलिनेट देम फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स. एलिनेट समझते हैं, अलग ही हो जाएंगे, राइट. सो इन सम केसेस दिस कैन स्टार्ट अ विशियस साइकिल ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस. विशियस साइकिल समझते हैं, मतलब फिर सब कुछ नेगेटिव ही जाना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू सम सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स, राइट. फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इस चीज़ में
इसमें emotional effects will occur. Then comes the physiological effects. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली चीज़ जो डिस्टर्ब होती है बेटा, हार्ट बीट चेंज होगी जब स्ट्रेस होगा. ओके, सो इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन हॉर्मोन्स, राइट, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन, सेम वो याद है आपको, सच एज एड्रेनलिन, क्योंकि हर टाइम हमें क्या लगेगा, एक डर सा फील होगा. तो मैंने कहा था वेन एवर आई कम अक्रॉस एनी डेंजर, so what will happen, these adrenaline and cortisols, they will release, those hormones produce marked changes in heart rate. Actually they are not good. Sometimes if it occurs it's okay. जैसे we come across एक स्नेक आ गया सामने, अभी रोज रोज थोड़ी आएंगे, एक आ गया, आपको पता है बॉडी ने क्या किया, सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी करके मेरी लेग्स में दी ताकि मैं भाग सकूं. लेकिन क्या ये नॉर्मल फंक्शनिंग था? क्या ये स्मूथ फंक्शनिंग का पार्ट है? नहीं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. एवरी टाइम फीलिंग डेंजर फ्रॉम दिस सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड. तभी हम बार बार बोलते हैं कि बच्चों को डराना, बार बार डराना, बाबा आ जाएगा सो जाओ, ये लैंग्वेजेस, देखो बाहर चौकीदार आ गया या गार्ड आ गया, इस तरह से डराना इज नॉट गुड. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दीज एड्रेनलिन कॉर्टिसल्स ये हार्ट पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं. सो हार्ट रेट का चेंज होना, ब्लड प्रेशर लेवल का चेंज होना विल इफेक्ट मेटाबॉलिज्म्स एंड फर्दर इम्यूनिटी. ओके, so changes such as release of epinephrine or non-epinephrine, slowing down of digestive system. अब ये सबसे पहले स्टमक को डिस्टर्ब कर देंगे. स्टमक डिस्टर्ब हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेज इन द लंग्स, you can see, and construction of blood vessels also occur. So this is construction of blood vessels, decreases blood. अब ये देखो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो पूरा प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाएगा, सप्लाई नहीं जाएगी फिंगर्स को, हाथ नमनेस हो जाती है. सो पेल हो जाना, समझते हैं, पेल हो जाते हैं, पीले हो गए बिल्कुल. तो ये दीज थिंग्स आर दी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स विच हैपन्स इन द बॉडी. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर. देयर आर सर्टन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स. कौन से? इट्स इज द स्ट्रेस, अ पुअर कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस शॉर्ट टर्म. तभी बोलते हैं स्ट्रेस बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, उल्टा उनकी पढ़ाई का लॉस होगा. दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, तो हाउ विल दे बी एबल टू स्कोर? तो आपको लाइवली सिचुएशंस में ही पढ़ना होता है. फॉल्टी डिसीजंस मेड एट होम इन करियर, गलत डिसीजंस, कॉलेज गलत चूज हो गया, स्कूल गलत, वर्क प्लेस गलत, फाइनेंशियल लॉस में फेलियर, ये सब जो हैं ये क्या करेंगे, मेरे ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं. Then comes the behavioral effect. These includes disrupted, सबसे पहले sleep pattern disturbed, increases absenteeism and reduce work performance. होता क्या आपको याद पता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो फिर हम छुट्टियां लेते हैं स्कूल से, because we are not able to cope with that. तो stress effect behavior में it happens in the form of eating also. So we start eating either less or maybe more, but eating less is more prominent. Nutritional food बंद हो गया, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे, मेडिसिन लेने लगे, कैफीन ले लिया, चाय कॉफ़ी पी ली, और क्या करते हैं लोग, अल्कोहल, ड्रग्स, दे यूज ट्रैंकुलाइजर्स. सो व्हाट इज ट्रैंकुलाइजर? इट कैन बी एडिक्टिव, पता है ना, बार बार लेना, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिजीनेस होता रहेगा. सो सम टिपिकल बिहेवियरल आर दी डिस्ट्रप्टेड स्लीप पैटर्न, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा है. Okay, so this was all about, what did we talk about? We are talking about the effects of stress, and we've done the effects. That was emotional, physiological, cognitive and behavioral. Now reaching to stress and health. Stress and health is given in your book but not here. यहाँ सीधा आ गया general adaptation syndrome. So उससे भी पहले मैं चाहती हूँ you reach to page number 58. वहाँ है stress and health. Alright, इसमें आपको एक दो बातें जो याद रखनी वो क्या है. So you have to talk about, here it is written that you must have often observed that many of your friends fall sick during the examination time. You must have seen they suffer from stomach upset. सबसे पहले stomach, फिर body aches होंगे, nausea, diarrhea, fever. You also must have noticed that people who are unhappy in their personal lives, they fall sick more.
often than those who are very happy and enjoy life. Chronic daily stress can divert an individual's attention. कहाँ divert करेगा? From caring for herself or himself. So अपने आप की केयर. When stress करना बंद कर देते हैं लोग. When stress is prolonged, तो फिर क्या होगा जी? Physical health डिस्टर्ब हो जाएगी, फंक्शनिंग प्रॉपर साइकोलॉजिकल नहीं रहेगी. People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demand from the environment and constraints are too high or too little is available from family. तभी बोलते हैं बहुत सारी expectations नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम when we demand too much from children, that is also cause of loss of health. And when we demand less from them, तो भी cause of health जो है वो रहेगा. क्यों? Because they will not give their 100%. Physical exhaustion is seen in the symptoms of chronic fatigue. कैसे पता चलेगा? थके थके रहेंगे, वीकनेस होंगे, लो एनर्जी फील करेंगे. और मेंटल एग्जॉशन कैसे पता चलेगी? वही इरिटेबिलिटी, फीलिंग लो, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस. इस स्टेट को हम कहते हैं बर्नआउट स्टेट. बर्नआउट मीन्स हम बोलते हैं ना कभी कभी आई एम टोटली बर्नड आउट. कैसे? फिजिकली भी मैं बहुत थक गई हूँ, मेंटली भी बहुत थक गई हूँ, इमोशनली भी मैं इस टाइम बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ. सो दिस टर्म इज नोन एज बर्नआउट. सो यू मस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, डिफाइन बर्नआउट. तो ये आप लिखोगे कहाँ से? द फिजिकल एग्जॉशन इज सीन इन द साइन ऑफ क्रॉनिक फटीग से स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, सो ये आपका पॉइंट हो गया. अब हम चलते हैं गैस पर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. इसमें 3 स्टेजेस हैं. यू कैन सी 3 स्टेजेस ऑन द ग्राफ. अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉशन स्टेज. कैन यू सी दैट? राइट, दिस इज स्टेज ऑफ अलार्म. स्टेज को अलार्म रिएक्शन भी कह देते हैं, इसे स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरल adaptation syndrome. This is very 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 important. This is given by Professor Sale. Sale ने दिया है, SELYE. You can pronounce it anyways. Okay. इसका question भी दिया है आपकी बुक में. What happens to the body when stress is prolonged? You mark the question. This can be asked even in this way. Now Sale has studied this issue by subjecting animals to a variety of stressor, because we always test everything on animals first, and he kept them in high temperature, x-rays, insulin injections laboratory में for a long time. उन पे बहुत हाई टेम्परेचर में तो कि देखना था कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें क्या किया? उन्हें स्ट्रेस दे दिया. He also observed patients with various injuries and illness in the hospital. So he noticed a similar pattern of bodily response. जिसे उन्होंने क्या बोल दिया? पैटर्न को, उस पैटर्न को बोलते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट हैपेंस वाज देयर वर 3 स्टेजेस व्हिच हैपेंड. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अलार्म रिएक्शन. अब ये क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेसर. अब कुछ प्रॉब्लम आ गई, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी. हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी इन द ब्रेन, एड्रिनल इन द स्टमक. तो कॉर्टिसेक्स सिस्टम चालू हो गया, कॉर्टिसल्स रिलीज होंगे. दिस ट्रिगर्स the release of hormones. अलार्म हो गया ना, producing the stress response. क्या देना है? fight or flight. This we've done it already. अब बात समझ गए? सो अलार्म देखते ही मेरे एड्रिनल और पिट्यूटरी से कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने मेरे हार्मोन्स को रिलीज किया और मुझे डिसीजन लेने के लिए बता दिया कि भैया या तो भागो या लड़ लो, फ्लाइट और फाइट. देन कम्स द रेजिस्टेंस स्टेज. रेजिस्टेंस प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है. प्रोलॉन्ग्ड अंडरलाइन कर लीजिए. दिस इज अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस. द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉन्शियस यूज ऑफ बॉडी रिसोर्स. अब ये जो हमारी बॉडी है उसे देखो, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ. फर्स्ट डे वी वर ओके, 1 दिन के लिए ही है, चल जाएगा. लेकिन उसके बाद जब अनाउंस हुआ 15 दिन के लिए बंद रहेगा, अब क्या हुआ? प्रोलॉन्ग्ड. अब और फिर आया और अगले कुछ दिन बंद रहेगा. इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड. तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है ना, वो पता है क्या कहता है? नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम कहता है वो हमारी बॉडी की एनर्जी को सेव करने के लिए हेल्प करता है कभी कभी.
तो कहते हैं हम मोर कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें अपने बॉडी के रिसोर्सेज को, इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक्स एफर्ट टू कोप विद द थ्रेट, तो ये क्या करता है, इट कॉल्स फॉर मोर कॉन्शियस यूज ऑफ बॉडीज रिसोर्स। ये कहता है बहुत आराम से ध्यान से यूज करो। इट्स समथिंग लाइक रेजिस्टेंस स्टेज में, जैसे इट्स समथिंग लाइक पानी, हमने देखा घर में वाटर टैंक में पानी कम है, अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें क्या करना है, अपनी मोटर को ऑन करना है, लेकिन इतनी देर में लाइट चली गई। अब क्या है, रेजिस्टेंस स्टेज पे आ जाओ, भैया प्लीज कंजर्व वाटर। अब बात समझ रहे हैं, बिकॉज वी मे हैव टू कोप विद दिस थ्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कन्फ्रंट करने की सिचुएशन आ जाती है, मतलब हम तैयार हो गए, तैयार, कन्फ्रंट। देन कम्स द एग्जॉशन स्टेज। ये क्या है, इट इज कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर। ओके, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर और एडिशनल स्ट्रेसर। अब क्या हो रहा है, इट ड्रेन्स द बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड लीड्स टू द थर्ड स्टेज ऑफ एग्जॉशन। अब हुआ क्या, एग्जॉस्ट हो रही है, वो पानी खत्म हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द सेम स्ट्रेसर। सो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू। तो ये क्या हो जाती है, थर्ड स्टेज आ जाती है, एग्जॉशन इज द थर्ड स्टेज, राइट। अब इसमें क्या होगा, द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन अलार्म रिएक्शन, ठीक है, अलार्म में बॉडी ने दिया, रेजिस्टेंस बिकम्स क्या हो गया, इनइफेक्टिव, रेजिस्टेंस बिकम्स इनइफेक्टिव, क्योंकि आप जब बॉडी ने इस अलार्म रिएक्शन दिया तो रेजिस्टेंस नहीं हो रही, इनइफेक्टिव एंड ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज बढ़ जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर विल हैपन, एग्जॉस्टेड, फुली एग्जॉस्टेड जिसको बोल दिया हमने, दोबारा से इस बात को समझिए, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर, ओके, या एक और स्ट्रेसर आ गया, एडिशनल भी हो सकता है, उसने मेरी बॉडी को क्या किया, पूरा ड्रेन आउट कर दिया। मैं पहले रेजिस्ट में आई, लेकिन कंटिन्यूसली होता ही जा रही है प्रॉब्लम, यूज होता जा रहा है, पानी होता जा रहा है, घर में बच्चे नहीं, और भी कोई प्रॉब्लम अकर हो गई, चलो लीकेज शुरू हो गई। अब क्या होगा, इट्स ड्रेनिंग द होल बॉडी। फिर ये थर्ड में, अब मैं एग्जॉस्टेड वाली स्टेज में आ गई बेटा। सो फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस बिकम्स, अब रेजिस्टेंस नहीं हो सकती, इनइफेक्टिव हो गया। अब क्या होगा, अब तो भैया स्ट्रेस होगा ही होगा, उससे रिलेटेड डिजीज विल हैपन, सो दैट्स हाई ब्लड प्रेशर। तो सेल ने ये मॉडल डेवलप किया था, सेल ने, he has been criticized for assigning a very limited role to physiological factors in stress. So ये पैराग्राफ लास्ट वाला जो है क्रिटिसाइज किया, इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट क्रिटिकली एक्सप्लेन द नेगेटिव आउटकम, या क्रिटिकली या क्रिटिसाइज द सेल्स मॉडल। सो यू आर सपोज टू राइट दैट, क्योंकि रिसर्चर्स ने लिखा कि इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत ही कम रोल दिया, इसमें कहीं भी साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात नहीं की गई। ओके, हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड इन स्ट्रेस इज सब्सटैंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परसेप्शंस, पर्सनालिटी हो सकता है वो कोप कर लेते, लेकिन उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया। आई एम श्योर इट इज क्लियर, सो यू कैन कॉपी दिस, you can make this diagram and present in the paper also in this way. Then reaching to stress and immune system. All right, so this is a very small although and a very good chapter, and reaching to this topic, stress and immune system. Now what does this mean? हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक होती है। जैसे अभी आजकल लॉकडाउन के केस में हम स्ट्रेस में हैं और वो कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है ये हिट भी उसको करता है ना। सो दैट इज़ वाई इम्यूनिटी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स स्ट्रेस से डील करने की, प्रॉब्लम से डील करने की भी पावर होना चाहिए, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है इट गार्ड्स माई बॉडी, इट्स लाइक अ गार्ड टू माई बॉडी, और वो उसे बॉडी गार्ड कह लो आप। वो अटैकर्स के अगेंस्ट लड़ता है, चाहे वो अटैकर आउटसाइड हो या विद इन हो, तो इंटरनल स्ट्रेस हो या एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, इम्यूनिटी एक्चुअली हमारी बॉडी के साथ गार्डिंग करती है। हमने टर्म सुना होगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये जो है ये फोकस करती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको यानी साइकोलॉजिकली, न्यूरो हमारी बॉडी का न्यूरो सिस्टम, इट फोकसेस ऑन द लिंक ऑफ किस में, माइंड यानी न्यूरो
एंड ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम. So it studied the effect of stress on immunity. So how does the immune system work? हम पढ़ लेते हैं. हम आपने सबने सुने होंगे वाइट सेल्स इन अ बॉडी, सुने हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ओके, वाइट ब्लड सेल्स विद इन द इम्यून. आई एम श्योर हमें पता है जब भी फॉरेन बॉडीज हमारे अंदर आती हैं किसी भी तरह का, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं वायरस आ गया, ये एंटीजेंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी एंटीजेंस. सो हम जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाएंगे. ओके, तभी तो हम इन्हें एंटीबायोटिक देकर मार देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं ना. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर एनी वायरस enters into my body, if my immune system is strong, तो ये जो मेरा ल्यूकोसिट्स है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये अपने आप उसे अंदर किल कर देते हैं, इसमें पावर है उसको मारने की. लेकिन अगर मेरी इम्यून सिस्टम ही वीक है तो फिर क्या होगा, फिर तो वो डोमिनेट कर जाएंगे, जो फॉरेन सिस्टम होगा. सो दे विल डोमिनेट ऑन माई बॉडी एंड व्हाट हैपन्स इज इट विल किल ऑल माई गुड सेल्स जिन्हें हम बोलते थे. एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स भी 3 तरह के होते हैं. ओके, एक नेचुरल किलर सेल्स हैं हमारे अंदर, टी सेल्स बोलते हैं, बी सेल्स बोलते हैं, 3 तरह के हैं. उसमें क्या है, टी सेल्स जो होते हैं वो क्या है, दे डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, जो भी आएंगे उनको मार दिया जाएगा. टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी. वो कहेंगे क्योंकि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, तो वो हमारे अंदर के अच्छे वाले सेल्स की इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. हेल्पर सेल्स है ना, एंड द हेल्पर सेल्स दैट आर अटैक्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV, दिस वायरस इज कॉजिंग एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स बोल देते हैं. ठीक है, जो बी सेल हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं. टी सेल्स क्या करते हैं, आने वाले इन्वेडर को किल करते हैं. बी सेल्स मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं. नेचुरल किलर क्या करेगा, 3 तरह के बोले ना मैंने, अभी हम यहाँ भी पढ़ेंगे. नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट बॉडी वायरस, वो लड़ते हैं. अब देखिए वो नेचुरली किलर है ना, देखिए रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. Thus what happens, mental and physical health is affected. Weakened immune system has a serious effect on individual's health, for sure. Stress can affect natural killer, जो मैंने अभी बोला, इनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी. नेचुरल किलर को वो मार देंगे, मतलब जो मेरे बॉडी में फॉरेन बॉडीज आएंगी उनको मारने वालों को पहले मार दिया तो फिर मारेंगे कैसे, फिर तो वो डोमिनेट कर गए. विच इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर. क्योंकि नेचुरल किलर खत्म हो गए इसलिए कैंसर बढ़ गया बॉडी में, तभी तो लोगों को कैंसर ज़्यादा होने लगा. रिड्यूस्ड लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिसिटी, हैव बीन फाउंड इन पीपल हु आर हाईली स्ट्रेस्ड, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फेसिंग इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस, देन bereaved persons, जो डरे हुए हैं, those who are severely depressed, स्ट्रेस में हैं. Individuals may have panic attacks, obsessive behavior, mood swings, इनमें ये सब कुछ होगा बेटा, phobias हो जाएंगे. Then these individuals have feelings of hopelessness which is worsened by injury or diseases. I'm sure we are understanding. तो जो बीच में मैंने आपको एंटीजेंस बता दिए, एंटीबॉडीज बता दिए, those you can include here. What stress does to our body? Now what happens is, head से आते हैं. It issues with mood. हेड में क्या, मूड स्विंग्स, एंगर, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, एनर्जी लॉस, एपेटाइट लॉस, स्लीपिंग इश्यूज, ये सब हो जाएंगे. स्किन पे क्या होगा, एक्नेज हो जाएंगे. जॉइंट और मसल्स में पेन हो जाएगी, राइट. बोन डेंसिटी लोअर हो जाएगी. हार्ट, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, हायर कोलेस्ट्रॉल. स्टमक में स्टमक क्रैम्प्स आ गए, नोजिया. पेनक्रियाज में डायबिटीज, सबसे पहले शुगर हो जाएगी. इंटेस्टाइन्स में क्या होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिड्यूस सेक्स ड्राइव, लोअर स्पर्म प्रोडक्शन, ऐसे लोग फिर कंसीव नहीं कर पाएंगी लेडीज. प्रेगनेंसी इश्यूज हो जाएंगे. इम्यून सिस्टम, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू बैटल
and recover from illness. This is what will happen inside my body. Every part is affected. Okay. Now, coping with stress. That's a beautiful topic. Coping with stress. हम इसके साथ कैसे cope करेंगे?